Hello students. So our today's topic is disk scheduling. Before going directly to the disk scheduling, we first understand what is the actual requirement of disk scheduling. As you all know, disk provide the bulk of secondary storage for our modern computer system. Initially we were using magnetic tape, है ना, early secondary storage medium was magnetic tape, but the access time for the magnetic tape is very slow than the disk. So those tapes are currently used mainly for backup. अभी भी यूज़ होता है बट इट इज़ मेनली यूज फॉर बैकअप, फॉर स्टोरेज ऑफ इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड इन्फॉर्मेशन जो हमको बार बार यूज़ नहीं करना है. सो और एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर आपको कहीं लेकर जाना है तो or for storing some quantities of data which is very large and they are actually not frequently used. You just want to make it as a backup. So tape storage वहाँ पर अभी भी यूज़ हो रहा है. But our modern computer system has disk drive. So modern disk drives are addressed as large one-dimensional arrays of logical blocks. है ना, हमारा डिस्क जो है वो लार्ज एरे ऑफ लॉजिकल ब्लॉक से बना हुआ है. ठीक है, ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. दैट मीन्स हमारा जो डिस्क है दैट इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड हियर दिस लॉजिकल ब्लॉक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ट्रांसफर. ठीक है, सो द साइज ऑफ अ लॉजिकल ब्लॉक इज यूजुअली 500 बाइट्स, बट किसी किसी डिस्क में हम इसको 1024 बाइट्स भी होता है, जिसमें लो लेवल फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको अलाउड होता है. सो यू कैन चूज़ योर द साइज ऑफ लॉजिकल ब्लॉक, बट मोस्टली 512 बाइट्स होता है, किसी किसी में 1024 बाइट्स भी होता है. So this one-dimensional array of logical blocks is mapped onto the sectors of the disk sequentially. Do you know the architecture of disk? Hardware architecture of disk क्या था उसमें? The disk have many cylinders. Each cylinder is divided into tracks and each track is divided into sectors. ठीक है? So the outermost जो cylinder है, track, जो सिलेंडर का सबसे outermost track है, वहाँ से अपना उसका जो पहला ब्लॉक है दैट विल बिकम द सेक्टर 0. ठीक है, सो द मैपिंग प्रोसीड्स इन ऑर्डर फ्रॉम दैट सेक्टर 0 and then through the rest of the tracks in that cylinder and then through the rest of the cylinders from the outermost to innermost. ठीक है, outermost to innermost, ये याद रखना. So by using this mapping we can convert a logical block number into an old style disk address that consists of cylinder number, then a track number within that cylinder and a sector number within that track. है ना, ये तीनों चीज़ को देकर एक डिस्क का एड्रेस पहले होता था, बट आज के डेट में हम डिस्क को लॉजिकल ब्लॉक के एड्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं और एक्सेस करते हैं. ठीक है, दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ डिस्क इफ यू रिमेंबर दैट यू हैव लर्न इन द लास्ट सेमेस्टर. So the entire disk is divided into platters. This is the disk. This whole thing is inside the hard disk. Entire disk is divided into platters. ये जो disk, ये पूरा disk है, the entire disk is divided into platters. And so now why we are calling it as a platter? See, this is the single disk and we are calling it as a platter because we can write here also and at the back side also. ठीक है, दोनों तरफ हम लिख सकते हैं. इस तरफ जिस तरफ आप देख पा रहे हैं और उसके जस्ट अपोजिट साइड भी हम लिख सकते हैं. जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क या डीवीडी में एक ही तरफ आपका राइटिंग मैकेनिज्म होता है, बट here you can write on both sides. ठीक है, so the entire disk is divided into platters. There can be multiple platters based on the manufacturer, and each platter consists of the concentric circles called as tracks. हर एक platter again एक concentric circle में divided है and we are calling it as a track. ठीक है,
So disk is divided into platters and each platter is divided into tracks. ठीक है, and these tracks are, ये है आपका ट्रैक, ऐसे ऐसे आपने बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल बना के हर एक प्लेटर को ट्रैक्स में डिवाइड कर दिया है. एंड दिस ट्रैक इज अगेन डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सेक्टर. दिस इज इंडिविजुअल सेक्टर. ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर्स डिवाइडेड है आपका ट्रैक. ठीक है. सो सिलेंडर कैसे फॉर्म होता है? इस प्लेटर का इस प्लेटर का जिस रेडियस में ये वाला ट्रैक है उसी रेडियस में इस प्लेटर का जो ट्रैक है उनको सबको मिलाकर एक सिलेंडर फॉर्म होता है लाइक दिस. ठीक है. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ तो इस रेडियस में जितने सिलेंडर आएंगे, जितने डिस्क आएंगे, जितने ट्रैक्स आएंगे हर एक प्लेटर में, दैट विल मेक अ सिलेंडर, दैट विल फॉर्म अ सिलेंडर. ओके. सो you can make a note of it. मैंने कहीं पे लिखा नहीं है, but this is the actual thing. when if you would have to write about the short note of magnetic disk, तो आप ये लिख सकते हैं with this diagram. okay. तो अभी तक मैंने 3 पॉइंट बताए. एक क्या बताया? प्लेटर, then track, and then sector, and then how the cylinder is forming. okay. Now there is something else you are saying here. देयर इज़ अ स्पिंडल इनसाइड, जो जिससे हम इसको होल्ड करके रख रहे हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस में. एक स्पिंडल है दैट इज मूविंग. एक्चुअली ये स्पिंडल मूव करता है. ठीक है. दिस स्पिंडल इज मूविंग एंड इट इज ऑल्सो हेल्पिंग ऑल द प्लेटर्स टू मूव इन रोटेशन. ठीक है. सो देयर इज वन डिस्क आर्म, एक डिस्क आर्म है. क्या हो रहा है इसमें से? एक रीड राइट हेड इस डिस्क आर्म से हर एक प्लेटर के ऊपर है, सो दैट वी कैन रीड अ पर्टिकुलर सेक्टर. ठीक है. डेटा रीड करने के लिए हमको रीड राइट हेड लगाना पड़ेगा. देन टू सपोर्ट दैट रीड राइट हेड वी हैव सम डिस्क आर्म, एंड दिस डिस्क आर्म इज कंटेनिंग कितने नंबर ऑफ रीड राइट हेड होंगे? जितने नंबर ऑफ प्लेटर्स होंगे. प्लेटर्स एंड उसके साइड. ठीक है. तो जितने नंबर ऑफ प्लेटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 number of read write head you will have in disk arm. Okay. So there exists a mechanical arm called as read write head. It is used to, this read write head is used to read and write to the disk. ये read write arm. This is used to read write to the disk, read from and write to the disk. So this head has to reach at a particular track. पहले तो उसको इस डिस्क में ये जो हेड है वो, जैसे डिस्क अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये जो हेड है, ये डिस्क आर्म जो है वो ऐसे मूव करता है, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो ये ऐसे मूव कर रहा है और आर्म आपका ऐसे मूव करता है, बिकॉज इट हैज़ टू गो फ्रॉम द इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट, देन आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट. इस तरीके से इसको मूव करना है. तो this head has to reach at a particular track and then wait for the rotation of the platter. ठीक है. जैसे कि अगर कोई एड्रेस आया, ठीक, दिस डिस्क इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ट्रैक्स एंड हर एक ट्रैक का एक नंबर होगा. ठीक, हर एक ट्रैक का एक नंबर होगा. तो मान लो, वैसे तो 0 यहाँ से स्टार्ट करते, मान लो ये 0 है, फिर 1 2 इस तरीके से लेकर या 200 सिलेंडर ट्रैक्स हैं. तो इस तरीके से है. ठीक. तो अगर 50th ट्रैक की डिमांड आती है, 50th जो ट्रैक है उसकी डिमांड आती है, तो हेड हैज़ टू रीच टू दैट 50th वन फर्स्ट. ठीक है. उस 50th ट्रैक में पहले पहुंचना पड़ेगा, और जब वहाँ पहुंच गया उसके बाद कौन से सेक्टर में पहुंचना है वो काम ये स्पिंडल करेगा, सो दैट द प्लेटर विल rotate and then it causes the required sector of the track to come under the head. Clear? So each platter has 2 surfaces, top and bottom, and both the surfaces are used to store the data,
and each surface is divided into sector. Disk arm is actually moving left and right to get or to reach to a particular track, and then it is waiting, the disk arm is waiting there. जैसे कि अगर यहाँ पर पहुँचना है, this is 50th track यहाँ पर, then this disk arm is waiting there for the rotation of the platter. Okay, so each surface has its own read write head, जैसे कि ये मैंने बोला. क्लियर? सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप भी एज अ नोट आप नोट कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क के. सो ये है उसका हार्डवेयर आर्किटेक्चर. लेकिन व्हाट आर द डिस्क परफॉर्मेंस पैरामीटर्स? सो व्हाट इज एक्चुअली द सीक टाइम हियर टू मेक दिस रीड राइट? What is the time taken by this read write head to reach to the desired sector? इस तरीके से मूव करते वक्त अगर किसी desired track, कौन से ट्रैक में पहुंचना है, तो to reach the desired track is called a seek time. तो ये इस read write head को particular track में पहुंचने में जितना टाइम लगता है, that is called the seek time. Okay, that is one of the parameter ऑफ डिस्क परफॉर्मेंस. जितनी जल्दी ये पहुंचेगा उतनी जल्दी हमको डेटा रीड राइट करने में आसानी होगी और टाइम कम से कम लगेगा. ओके, सो दिस इज द ओनली, दिस सीक टाइम इज द मेन कंपोनेंट विच कंट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्क सर्विस टाइम. सो द लोअर द सीक टाइम द फास्टर द IO ऑपरेशन. दैट्स इट, दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, इस सीक टाइम के अलावा दूसरा क्या है? सीक टाइम उस ट्रैक में तो पहुंच गया, दूसरा रोटेशनल लेटेंसी. रोटेट करके स्पिंडल को, प्लेटर रोटेट होकर उस पर्टिकुलर सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे लेके आएगा. दैट इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर टू कम अंडर द रीड राइट हेड इज कॉल्ड एज रोटेशनल लेटेंसी. ठीक है. देन डेटा ट्रांसफर रेट, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट पासिस under the read write head in a given amount of time is called a data transfer rate. ठीक है, और the time taken to transfer the data is called as transfer time. ठीक, so it depends on the following factors कि कितने number of bytes को ट्रांसफ़र करना है, रोटेशनल स्पीड क्या है डिस्क की, डेंसिटी क्या है हर एक ट्रैक की. अच्छा देखो, जैसे जैसे आप इनर मोस्ट ट्रैक की तरफ आएंगे आपका ट्रैक का साइज़ कम होता जा रहा है, दैट मीन्स डेंसिटी बढ़ती जाएगी. So outermost track will have the minimum density, storage density. हर एक ट्रैक में एक और चीज़, हर एक सेक्टर में उतने नंबर ऑफ बाइट्स, कितने नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर हो रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी जो है इनर मोस्ट में सबसे ज़्यादा होगी और आउटर मोस्ट में सबसे कम होगी. डज इट मीन कि हर एक सेक्टर में हम लोग इक्वल नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर करके रखते हैं? तो अगर आपको कैपेसिटी ऑफ डिस्क निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेस कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, देन नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक. ठीक है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी. एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर का स्टोरेज कैपेसिटी क्या है ये पता करना है, क्योंकि हर एक सेक्टर का स्टोरेज कैपेसिटी सेम है. ठीक, तो नंबर ऑफ सर्फेसेस पता चल गए, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ट्रैक्स पर सरफेस, multiplied by number of sectors per track, multiplied by storage capacity of one sector. This will give you capacity of disk. So जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, डिस्क टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक हैज़ बिन इंक्रीजिंग. So the outer zone of a disk usually has several hundred sector per track. Similarly, the number of cylinders per disk has been increasing. So large disks have tens of thousands of cylinders in it, so that you can store the very big amount of data into it. Okay, so this was the introduction to disk architecture, जिसमें डिस्क में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है. बट अब ज़रूरत क्यों पड़ रही है डिस्क शेड्यूलिंग की? बिकॉज ऑफ दिस आर्किटेक्चर, जब भी कोई प्रोसेस, वी हैव मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, वी विल हैव मल्टीपल प्रोसेसेस. सो वेन एवर अ प्रोसेस नीड्स IO टू और फ्रॉम द डिस्क, इट इशूज अ सिस्टम कॉल. ठीक है, तो उस समय उस रिक्वेस्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिससे ये समझ में आता है कि डिस्क का कौन सा सेक्टर
ऑपरेटिंग सिस्टम को ये समझ में आता है कि डिस्क का कौन सा सेक्टर हमको एक्सेस करना है. बट बिफोर दैट हमको ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हार्डवेयर को, डिस्क को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए उसको दो चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि उसके डिस्क में एक्सेस टाइम कम से कम लगे. ठीक है, फास्ट एक्सेस टाइम होना चाहिए एंड डिस्क बैंडविड्थ भी ज़्यादा होना चाहिए. अब ये दो चीज़ें होती क्या है, फास्ट एक्सेस टाइम. डिस्क में अगर एक्सेस टाइम की बात करें तो डिस्क में दो टाइप एक्सेस टाइम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी. ठीक है, तो सीक टाइम कौन सा टाइम है? इट इज़ द टाइम फॉर द डिस्क आर्म टू मूव द हेड्स to the cylinder containing the desired sector. ठीक है, and the second time is the rotational latency. ठीक है, it is the additional time waiting for the disk to rotate the desired sector to the disk head. Access time of disk involves seek time and rotational latency. And the next one is disk bandwidth. What is disk bandwidth? Bandwidth जहाँ पर आया वहाँ पर हम डेटा की बात करें, number of bytes of data. So you can calculate the disk bandwidth as it is the total number of bytes transferred divided by the total time between the first request for service and the completion of the last transfer. ठीक है, हो सकता है ब्लॉक बाय ब्लॉक एक के बाद स्टोर हो जो रिक्वेस्ट आई है उससे. तो फर्स्ट उस सर्विस का जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आया एंड द कंप्लीशन ऑफ द लास्ट ट्रांसफ़र, ये जो टाइम है उससे आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर, तो आपका डिस्क बैंडविड्थ निकल जाएगा. नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम ये होता है. ठीक है, लेकिन पर यूनिट टाइम यहाँ पर क्या है? टाइम द फर्स्ट रिक्वेस्ट केम एंड द लास्ट रिक्वेस्ट ट्रांसफर कंप्लीटेड. ठीक है, वो जो दो टाइम है उसका जो डिफरेंस है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसको? नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड. These two things can be improved. These two things, fast access time and disk bandwidth, can be improved by scheduling the servicing of disk I/O request in a good order. ठीक है, जिस तरीके से सर्विस रिक्वेस्ट आ रही है उस सर्विस रिक्वेस्ट को अगर आपने एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा है, उसको एक सही तरीके से शेड्यूल किया है, सो यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव द एक्सेस टाइम एंड द डिस्क बैंडविड्थ. दैट इज द थिंग. सो टू यूज़ द हार्डवेयर एफिशिएंटली ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कुछ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स रखने पड़ेंगे कि हम उसको गुड ऑर्डर में हम मेंटेन कर पाएँ. तो क्या स्टेप्स लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम टू शेड्यूल this disk I/O requests? So because of multi-programming system we have multiple processes, and if a process needs I/O to or from the disk, it issues a system call to the operating system कि मुझे वो ब्लॉक एक्सेस करना है जिसका एड्रेस ये है, इस तरीके से. ठीक, सो इफ द डिजायर्ड डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोलर आर अवेलेबल, डिजायर्ड डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोलर, हर एक ड्राइव का एक कंट्रोलर होता है. इफ दे आर अवेलेबल, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, द रिक्वेस्ट कैन बी सर्विस्ड इमीडिएटली. जो रिक्वेस्ट आई है तुरंत उसको आप फुलफिल कर दोगे. बट इफ द डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोलर आर बिजी, है ना, एनी न्यू request for service will be placed on the queue. Again device queue, याद है डिवाइस क्यू, जहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट आप फुलफिल कर रहे हो प्रोसेसेस की, वहाँ पर अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगे यू हैव टू वेट. ठीक है, तो अगर अभी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग रिक्वेस्ट को कंट्रोलर और डिस्क ड्राइवर सर्विस कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम दे विल बी बिजी. सो व्हाट वी डू, वी प्लेस दैट न्यू रिक्वेस्ट ऑन द क्यू एंड दैट इज कॉल्ड द पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर द ड्राइव. ठीक है, एंड व्हेन वन रिक्वेस्ट किस तरीके से करता है डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोलर, व्हेन वन रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड द OS चूजेस विच पेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्विस नेक्स्ट. एंड हियर कम्स कि नेक्स्ट कौन सा रिक्वेस्ट चूज करें, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर जिसकी बात हम कर रहे थे. ठीक है, शेड्यूलिंग करिए तो शेड्यूलिंग हो रही है, इस शेड्यूलिंग में हम सर्विस कर रहे हैं डिस्क I/O रिक्वेस्ट को. उस डिस्क I/O रिक्वेस्ट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन दोज रिक्वेस्ट विच आर वेटिंग देयर इन द क्यू. अब उसमें से हम कौन से रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल करें कि हमारा शेड्यूलिंग एफिशिएंट हो जाए एंड इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्क बाय एक्सेस टाइम एंड डिस्क बैंडविड्थ. ठीक है, टू डू
To do this thing, we have some algorithms of disk scheduling, and these are the algorithms. There are 6 disk scheduling algorithms that operating system can apply on the pending request. First is FCFS scheduling, that is first come first serve scheduling. Then SSTF scheduling, shortest seek time first scheduling. Scan scheduling, circular scan scheduling, look scheduling, and circular look scheduling. These are the different algorithms through which we will maintain a some order to improve the performance of the disk scheduling request. So with this disk scheduling algorithm, what we are doing, we are trying to satisfy the request coming for the disk read or write request, ठीक है, in an order so that it will take minimum disk access time. ठीक है, तो किस ऑर्डर में इस डिस्क ट्रैक के रिक्वेस्ट को हम लोग फुलफिल करें, ठीक है, कि कम से कम इस डिस्क आर्म को मूव करना पड़े, और सीक टाइम, मतलब सीक टाइम किसको बोल रहे हैं, डिस्क आर्म को मूव करने में जितना टाइम लग रहा है, तो कम से कम टाइम इस डिस्क आर्म को मूव करने लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा रीड राइट रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएँ. वही हमको अब नेक्स्ट पढ़ना है. ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स एंड, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम 1 by 1 एक एक एल्गोरिदम को देखेंगे, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड हाउ द डिस्क schedule the pending request of the different processes. Okay, thank you.